कैट एग्जाम में वर्बल सेक्शन की प्रेपरेशन सबसे ज़्यादा ट्रिकी होती है, एंड नॉट बिकॉज इसकी प्रेपरेशन इन इटसेल्फ डिफिकल्ट है, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वर्बल सेक्शन में प्रोग्रेस मेजर करना बहुत ट्रिकी हो जाता है। अनलाइक क्वांट जहाँ आप एक टॉपिक प्रिपेयर करते हो एंड यू नो वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट, वर्बल सेक्शन में वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपकी फर्स्ट आरसी में आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लियो एंड 50th आरसी में आपसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, एंड बिकॉज इट्स डिफिकल्ट क्या होता है, कैंडिडेट्स एंड जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो यूजली कुछ ऐसी चीज़ों का प्रिपरेशन करते रह जाते हैं विच डज नॉट गिव देम इनफ रिटर्न, एंड बाय द टाइम दे रियलाइज इट, इट्स ऑलरेडी टू लेट. And that's why in this video I'm going to cover the entire verbal strategy that you should use to prepare. What exactly you should prepare for the verbal section, more importantly what exactly you should not prepare for verbal section, and also all the resources that you should use for this particular section, irrespective of the fact whether you are self-studying or enrolled in any particular coaching. Before we move ahead, if you are a CAT aspirant, do consider subscribing the channel because there are a lot of useful videos planned for this particular year. And also, if this channel genuinely helps you, do consider liking the video because then it helps the algorithm push it to more people. So start करते हैं how to improve your foundation for verbal preparation, and यहाँ आपको improve करने हैं दो skills. One is your reading ability and the other one is critical thinking ability. If you can master these two skills, then more or less your verbal preparation is done. And my entire video is going to be based on this only, that how do you improve these two skills. Apart from that, vocabulary जो होता है, आप कितना words जानते हो, that is something that does not matter for an exam like CAT. बस अगर आपका reading ability and आपका critical thinking सही है, then you will be able to crack all the things, whether it is RC, whether it is a verbal reasoning question, whether it is your parajumbles, you will be able to crack every question. And reading ability कैसे improve करनी है? First suggestion here for you is to start reading more, and that's the simplest suggestion that I can give. And it's not necessary that if you do not like to read books, you have to read books only. मेरा personal suggestion रहेगा, rather than books, read more articles, because then you are introduced to different styles of writing and different variety of topics, which is more important for CAT. अगर आप same book पढ़ते हो, शायद 2 week में आप एक book complete करोगे, but you can read different articles every day, and that is going to be really really helpful. And where do you find these articles? Either you can pick up any newspaper, say a Hindu newspaper, you can pick up and read the editorials there. My personal suggestion is Hindu, but you can pick up any newspaper. After you become a little bit more advanced, you can switch to Aeon Essays. That is also a very good source to read more and more articles, but it's a little bit difficult to grasp that level of writing. So you can do that after a while. And इसके बाद आप काफ़ी सारे articles, coaching institutes भी provide करते हैं. You can read there. For example, in this particular video, I'm also collaborating with iQuanta, and a lot of free resources are available on their website. एक पूरा section ही है जहाँ पर आप articles read कर सकते हो. Free articles provided है which are taken from very good sources जहाँ से CAT के RCs आते हैं. So आप उनको जाके read कर सकते हो. It's absolutely free. उसके बाद कुछ free RC के test भी हैं उनके portal में that you can try. That will also give you enough reading practice. टॉकिंग अबाउट iQuanta, मैंने लास्ट ईयर भी रेकमेंड किया था ये कोचिंग, एंड उनका फीडबैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया लास्ट ईयर एज वेल. क्वांट फीडबैक तो हमेशा स्ट्रॉन्ग था, उनका वर्बल एंड LRDI फीडबैक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है. एंड मोर देन 200 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 99 परसेंटाइल, मोर देन 750 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 95 परसेंटाइल, एंड बहुत सारे टॉपर्स iQuanta से है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज परीक्षित विद 99.99 परसेंटाइल, देयर इज सत्यजीत विद 99.97 परसेंटाइल, देयर इज शोरदीप 99.95 percentile, Aditya with 99.95 percentile, there is Ronak 99.9 percentile, Mayuk 99.87, Abhishek 99.85, Aditya 99.83, एंड ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं. अगर मैं अभी 200 प्लस टॉपर्स हैं तो मैं सबका नाम नहीं ले सकता. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स फ्रॉम देयर. टॉकिंग अबाउट फीडबैक्स, दो चीज़ों पे इनका फीडबैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. एक था डुअल पेडागोजी सेशंस जहाँ पर आफ्टर थ्योरी क्लास जो एप्लीकेशन क्लासेस होते थे इनके, तो वो बहुत काफ़ी हेल्प किया था स्टूडेंट्स को. एंड उसके बाद जो 24/7 डाउट सॉल्विंग था इनके ग्रुप्स में, दैट ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट्स अ लॉट. एंड इनका CAT 2024 बैच लॉन्च हो चुका है. इफ़ यू वांट टू रजिस्टर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन रजिस्टर फ्रॉम देयर. एंड ऑल्सो इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वेयर यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट CAT और MBA प्रिपरेशन, वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप फ्रॉम देयर. कमिंग बैक टू वर्बल प्रिपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, उससे दो चीज़ें आपकी इंप्रूव होंगी. एक है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द पैसेज एंड सेकेंड इज योर रीडिंग स्पीड.
कॉम्प्रीहेंशन पहले आपको इम्प्रूव उस पर ध्यान देना है कॉम्प्रीहेंड करने के लिए कि पैसेज में क्या लिखा गया है। उसके लिए आप जब भी आर्टिकल रीड करते हो, अगर आपको इनिशियल स्टेज में इसमें इतना ईजिली समझ नहीं आ रहा है तो आप वो आर्टिकल पढ़ो एंड देन ट्राई टू समराइज इट इन योर ओन वर्ड्स। आप हर एक पैराग्राफ भी समराइज कर सकते हो इफ यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट। दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू कॉम्प्रीहेंड एंड ऑल्सो रिटेन वॉट यू हैव रेड। सो वो आपका फर्स्ट इनिशियल स्टेप हो सकता है। उसके बाद जाओगे आप स्पीड में, और स्पीड इंप्रूव करने के लिए आप बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, स्किमिंग टेक्निक्स होते हैं, और उसके बाद पैराफ्रेजिंग होता है। वो कुछ टेक्निक्स होते हैं जो मैं एक डिटेल वीडियो जब बनाऊंगा आरसी के लिए उसमें भी कवर कर दूंगा। बट अभी के लिए फर्स्ट फोकस आपका होना चाहिए कॉम्प्रीहेंशन में, एंड स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो आप 1 और 2 मंथ्स तो फोकस रखोगे अपनी रीडिंग एबिलिटी में बस, उसके बाद आप फोकस करने लगोगे इंडिविजुअल टॉपिक्स में भी। सो वर्बल सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं? सो फर्स्ट आप सब जानते हो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद पैराग्राफ समरी होते हैं। पैरा समरी आप बेसिकली आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, फिर उसकी कुछ समरीज दिए जाएंगे, यू हैव टू चूज द राइट समरी। उसके बाद पैरा जंबल्स वेयर यू हैव टू फिक्स द राइट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेज। उसके बाद ऑड वन आउट, यू हैव टू सिलेक्ट दैट सेंटेंस विच डज नॉट फिट इन द सीक्वेंस ऑफ योर पैराग्राफ। उसके बाद एक होता है फिल इन द ब्लैंक्स बोल सकते हो, या फिर उसको सेंटेंस कंप्लीशन बोल सकते हो। एक सेंटेंस दे दिया जाता है एंड यू हैव टू पुट इट इन द राइट प्लेस। ब्रॉडली यही देखे जाते हैं अभी। पहले और भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते थे, फॉर एग्जांपल सेंटेंस करेक्शन आते थे, वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। उसके बाद कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते थे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब भी आते थे, बट आजकल ये कॉमन नहीं है। ब्रॉडली वो जो 5 कैटेगरी मैंने पहले बताई थी वही आजकल एप्लीकेबल है, उसमें आपका होल प्रिपरेशन कवर हो जाएगा। इनफैक्ट आप अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बस प्रैक्टिस कर लेते हो, आप 80% फोकस बस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में रखो, बाकी बस 20% टाइम देना किसी भी और टॉपिक में, आपका ओवरऑल वर्बल प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका स्ट्रांग होता है तो बाकी टॉपिक्स आपके लिए बहुत इजी है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का प्रिपरेशन आप कैसे करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो पहले कुछ इनिशियल मंथ्स है आपका ओनली फोकस रहेगा उसको सॉल्व करने में। यू विल नॉट लुक इन टू द टाइम एस्पेक्ट ऑफ इट। टाइम में सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट, बट जो फर्स्ट इनिशियल फ्यू मंथ्स है उसमें आप बस ट्राई करो पैसेज कॉम्प्रीहेंड करने का एंड आंसर करने का। चूजिंग द राइट आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अंडरस्टैंडिंग विच आर द करेक्ट ऑप्शंस एंड विच आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरसी। आपको डिटरमाइन करना है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन क्यों रॉन्ग होती है, उसका पैटर्न फिगर आउट करना है। एंड मैंने जैसे अपने प्रिपरेशन के टाइम भी कुछ 6-7 स्ट्रैटेजीज फोकस किए थे, जिससे वो रिपीटेड मैंने देखा था कि उनसे ऑप्शंस रॉन्ग हो जाते हैं। एंड अगर आपको वो वीडियो चाहिए मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन वॉच दैट 6 स्ट्रैटेजीज टू क्रैक एनी आरसी वीडियो, दैट विल रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। सो आप वो पैटर्न्स फिगर आउट कर लोगे। एंड फॉर प्रैक्टिसिंग आरसीज, मोर एंड मोर आरसीज, यू हैव टू प्रैक्टिस द बेस्ट सोर्सेज। ईदर विल बी योर कोचिंग material that you use, or it would be the previous year question papers, previous year CAT papers आप निकालो, उनके RC solve करो, it is very very good. And there is another book that I can recommend, RC 99 करके एक book है, which is also a very good repository of very good RCs, you can use that. And मैं जो personally भी use करता था वो है GMAT Manhattan series का book। ये GMAT का book है, but it is a very very good book, especially अगर आप CAT के aspect में देखो तो GMAT का जो RC होता है वो slightly difficult होता है, so it's a very very good preparation for CAT exam as well. So GMAT Manhattan सीरीज के बुक्स भी आप यूज कर सकते हो। तो आपने पैटर्न फिगर आउट कर लिया कि आरसी के क्वेश्चंस क्यों रॉन्ग होते हैं, क्यों राइट होते हैं। उसके बाद आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी, एंड प्रॉमिस योरसेल्फ दैट फ्रॉम मिड मार्च आप डेफिनेटली एटलीस्ट 3-4 RCs एवरी डे करोगे। इफ़ यू आर सॉल्विंग 3-4 RCs एवरी डे फ्रॉम मिड मार्च टिल योर कैट एग्जाम, और एटलीस्ट टिल यू स्टार्ट योर मॉक्स वेरी डिलीजेंटली, सितंबर तक करो। एवरी डे 3-4 RCs प्रैक्टिस करते रहो। I can guarantee you will improve so much in your RCs. You won't need anything else for your verbal section. And ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आप में improvement नहीं आ रहा है, एटलीस्ट इन द फर्स्ट 3-4 मंथ्स जो होता है आपको लगेगा कि शायद improvement नहीं मिल रहा है, बट वो ग्रेजुअली आपका जो इंट्यूशन है वो डेवलप होता रहता है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट शायद आप खुद में नोटिस नहीं कर पाओगे, बट व्हेन यू अटेम्प्ट द मॉक्स यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाई सॉल्विंग RCs एवरी डे, बीइंग कंसिस्टेंट विद RCs इज हेल्पिंग यू।
फाइनली आपको एक क्विक टाइमलाइन बता देता हूँ फॉर योर वर्बल प्रेपरेशन। फरवरी मार्च में आप फोकस करो अपनी रीडिंग एबिलिटी में। मिड मार्च से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आरसीज। मिड मार्च अप्रैल आप बस आरसीज प्रैक्टिस करते रहो। उसके बाद आप स्टार्ट करो थ्योरी फॉर द अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आप मई में वो कवर कर सकते हो। सो आपका मई में बाकी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वर्बल सेक्शन के विद आरसीज एंड ऑल द अदर टॉपिक्स एज वेल। उसके बाद जून से फोकस ओनली एंड ओनली ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जितने ज़्यादा सेक्शनल हो सकते हैं वो उठा लो। मॉक्स में सॉल्व करोगे वर्बल के क्वेश्चंस तो वो जितना हो सकता है वो सॉल्व करो। सो जून जुलाई अगस्त सितंबर बहुत ज़्यादा टाइम है। उसके बाद भी अप्रॉक्स 5-6 मंथ्स आपके पास बचेगा। उसमें आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए सेक्शनल्स एंड मॉक्स पे। एंड ऑब्वियसली आरसी प्रैक्टिस 3-4 आरसीज एवरी डे कंटिन्यू रहेगा। एंड जो रीडिंग हैबिट है दैट इज योर रीडिंग आर्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज वो भी काइंड ऑफ कंटिन्यू रहेगा। दिस इज ऑल you need for verbal preparation. I hope you will start following these and ace your verbal section preparation. If you still have any doubt left, you can comment down below. I'll be happy to address it. So that's it from my side and see you in the next video.